الحمدللہ ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, انڈیا اسٹینڈز ود پیلسٹائن, انڈیا اسٹینڈز, انڈیا اسٹینڈز, انڈیا اسٹینڈز. دا وائس آف مائنورٹی میں آپ کا سواگت ہے. آج کلکتہ کی سرزمین میں ایک عظیم الشان ریلی فلسطین کی حمایت, اسرائیل اور اس کے حمایتی کی مخالفت میں نکالی گئی. آپ کو بتا دیں کہ 10 دنوں قبل یونائٹڈ کونسل آف علماء کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں لوگوں کو ریلی کے سلسلے میں آگاہ کیا گیا تھا. احتجاجی ریلی کا مقصد دنیا کو اور خاص کر ہندوستان اور امریکہ کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہم امن کے ساتھ ہیں. امریکن کونسلیٹ سے ملاقات کر کے یہ میسج دینا کہ امریکہ ظالموں کی مدد نہ کرے ورنہ وہ بھی ظالموں میں شمار ہوگا. چونکہ ریلی بڑی تھی اس لیے خبریں بھی بڑی بن گئی ہیں. آپ اسے اخیر تک ضرور دیکھیں اور بہتر لگے تو اسے سبسکرائب اور شیئر کریں. اس عظیم الشان ریلی کی قیادت کر رہے تھے حضرت مولانا ابو طلحہ جمال قاسمی صاحب, مفتی شمائل ندوی صاحب, مفتی عبدالسلام صاحب, مفتی امجد صدیقی صاحب, مولانا اشرف علی قاسمی, مولانا مختار اور مفتی عرفان صاحب. اس کے علاوہ کلکتہ کے کئی دانشوران حضرات بھی موجود تھے. علماء کرام کی ایک بڑی تعداد بھی شریک ہوئی تھی. پورے شہر کلکتہ میں صرف اور صرف لوگ ہی لوگ, ہجوم, بھیڑ ہی بھیڑ اور لوگوں کا سروں کا ایک سیلاب نظر آ رہا تھا تا حد نظر. اس جلوس کی خاص بات یہ رہی کہ اس میں بالکل نپے تلے نعرے لگائے گئے اور راہگیروں کو تکلیف نہ ہو اس کا بھرپور خیال رکھا گیا. پرامن جلوس کو دیکھ کر ویسٹ بنگال کے ایڈمنسٹریشن نے یونائٹڈ کونسل آف علماء کو مبارکباد پیش کی. آئیے چلتے ہیں خبروں کی طرف. کرنے والوں کی طرف جھکنا بھی نہیں, ظلم کرنے والوں کی طرف مائل بھی نہ ہونا. اگر تم ظلم کرنے والوں کی طرف مائل ہوگے تو اللہ نے فرما دیا ہے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ کہ جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی. بالدم نقدیک یا اقصی, سیف 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 سیف, فری فری, یو ایس اے کی گنڈا گردی, اسرائیل کی گنڈا گردی, یو ایس اے کی گنڈا گردی, اسرائیل کی گنڈا گردی, فری 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 فری, سیف 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 سیف, بالروح بالدم نفدیک یا اقصی. یہ ٹیم گئی تھی پولیس. یہ ہمارے بنیا پور تھانہ کے او سی ہیں راجیو دیو صاحب, بہت اچھے سے سنبھالا انہوں نے اور علماء بھی خوش ہیں ان کے رول سے, ان کی تعریف کر رہے ہیں. کافی اچھا رول ہے پولیس کا. اور علماء واپس آ رہے ہیں امریکن ایمبیسی سے, امریکن سینٹر سے. کیا باتیں ہوئی ہیں, کیا فیصلہ ہوا ہے, میمورینڈم لیا ہے یا نہیں, وہ ابھی بتائیں گے. گئی تھی واپس آ گئی ہیں. کیا بات لوگ انتظار کر رہے تھے, ہزاروں مسلمان ایسے بھی ہوں گے جو نماز روزے سے جڑے ہوں گے مگر ان چیزوں کو فضول سمجھتے ہوں گے, اور جب وقت آئے گا تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان کے ساتھ اور ایمان کی ترقی اور اس کی بلندی کے ساتھ جینا نصیب فرمائے. ہمارے آ چکے ہیں ذمہ داران حضرات اور بہت شکریہ. خوش آمدید. ہمارے علماء کرام ذمہ داران آ چکے ہیں اور تمام میڈیا والے بھائی بھی موجود رہے. تمام بھائی ذرا خاموشی کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ جو پیغام آیا ہے, جو باتیں آئی ہیں یا جو باتیں بھی آئیں گی, ہم سنجیدگی کے ساتھ سنیں گے اور انشاءاللہ اثر کی جماعت نماز پڑھنی ہے ہمیں. اس لیے خاموشی اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. اوپر آ جائے, 10 طرف سے بیانات نہیں ہوں گے, اسی مائک سے جو بھی بیانات دینے ہیں دے دیے جائیں.
दोनों गाड़ी जरा सा बराबर कर ले, दोनों गाड़ी जरा सा अशरफ थोड़ा सा बराबर कर ले, बराबर कर ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा कराम की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। आप लोगों ने जिस संजीदगी का मुजाहरा किया उसके लिए हम तमाम का, आप तमाम का और एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हुए अब मुफ्ती समाज नदवी साहब जो रुदात सुनाएंगे कि वहाँ कौंसलेट जनरल से सब लोग बैठ जाए और संजीदगी से बातों को सुने। तमाम मीडिया के भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि सामने की तरफ आ जाए, सामने आ जाए और तमाम साथियों को कहूंगा मीडिया वाले भाई को आने का जगह दे। अरे माइक कहाँ लेके जा रहा हूँ? मैं अब मुफ्ती समाज नदवी साहब रुदात पूरी रुदात आपके सामने रखेंगे। यहाँ घुमा नहीं, यहाँ थोड़ा घूम ले। वहाँ दो तीन ठीक है, दोनों तरफ बोले, दोनों तरफ। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि जो आप हजरात ने इंसानियत के खातिर, दीन इस्लाम के खातिर, कुरान करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम की खातिर जो जज्बा आप हजरात ने दिखाया है और जिस जज्बे के नतीजे में आज हम यूएसए के ऑफिशियल से मुलाकात कर पाए हैं, इसके लिए हम तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं चाहूंगा कि मुख्तसरन मैं आप हजरात को यूएस एम्बेसी में जो बात पेश आई है उसका हवाला और उसकी जो है कारगुजारी आप लोगों के सामने पेश कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा की जानिब से 4 हजरात यूएस एम्बेसी तक गए, जिसमें सर फहरिस्त जनाब हजरत मौलाना अबू तलहा जमाल कासमी हफिज़हुल्लाह और उसके अलावा जनाब उमर अवैस साहब और उसके अलावा हमारे शहनवाज इस्लाम साहब और मैं खुद मौजूद था। वहां पहुंचने के बाद उन हजरात ने सबसे पहले मुलाकात करने से इनकार कर दिया और बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद किसी भी यूएस के ऑफिशियल ने मुलाकात करने की तैयारी नहीं की और मुलाकात करने से सिरे से इनकार किया और ये बहाना बनाया कि कोई ऑफिशियल आज मौजूद नहीं है। हालांकि एम्बेसी में ऑफिशियल्स मौजूद थे, उसके बावजूद उन हजरात से ये बहाना बनाया कि आप लेटर सबमिट कर दें और आप हजरात यहाँ से तशरीफ ले जाएं, हम आगे ऑफिशियल्स को जब वो आएंगे फॉरवर्ड कर देंगे और बाद में आप हजरात को बुलाया जाएगा। लेकिन उस सिचुएशन में हमें आप हजरात याद आए कि जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और हर कुर्बानी के साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं और इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। जाहिर है हम ये ऐसा काम करके वापस नहीं आ सकते थे, इसलिए हम लोगों ने पुरजोर अपील की और बार बार रिक्वेस्ट की कि हम किसी भी ऑफिशियल से मुलाकात हर हाल में करके रहेंगे, उसके बगैर हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जब ऑफिशियल से मुलाकात होगी तभी ये बात तय पाएगी और ये बात जो है होगी कि भाई हम यूएसए तक ऑफिशियली हमने अपना पैगाम पहुंचा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बार बार इसरार के बाद और हम लोगों के अटल अज़्म को देखते हुए अल्लाह के फजल से और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे मुख्तलिफ इलाकों के ओसी, एसपी और दीगर जितने इंस्पेक्टर्स ने जिन्होंने ताउन किया और उन्होंने यूएस एम्बेसी में इंसिस्ट किया और उन्हें जो है तरगीब दी कि भाई आप जो है मुलाकात करवाएं और मुलाकात के बगैर ये हजरात यहाँ से नहीं जाएंगे। तो बार बार इसरार के बाद एक ऑफिशियल जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव थे वो बाहर आते हैं और वॉइस काउंसिलर है जो कि वहां पर आते हैं और हमसे मुलाकात करते हैं। उनके हाथ में न सिर्फ ये कि हमने लेटर दिया बल्कि लेटर देने के साथ साथ आप तमाम हजरात की आवाज को हमने उन तक पहुंचाया है। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से कहें अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उनसे ये साफ अल्फाज में कहा कि देखें
इंटरनेशनल कवानीन के पाबंद सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज हरगिज नहीं होंगे। अगर इंटरनेशनल कवानीन है तो उनके पाबंद यूएसए को भी होना पड़ेगा, और यूएसए इंटरनेशनल कवानीन के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। जिस तरीके से इस वक्त फिलिस्तीन की सरजमीन पर कब्जा, नाजायज कब्जा इजराइल की तरफ से किया गया है, और 1948 ये वो बातें हैं जो मैंने उनसे कही हैं अल्लाह के फजल से, कि 1948 से पहले उस जगह पे इजराइल नामी कोई चीज नहीं थी। वो पूरी सरजमीन पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन की थी। उस जगह पे ब्रिटेन ने और फ्रांस ने और दीगर यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर जबरदस्ती दुनिया से ज़ायोनिस्ट को बुलाया, वहां पे बसाया, और 1948 में ऑफिशियली इजरायली हुकूमत का ऐलान किया गया, और इसमें उस वक्त से लेके आज तक यूएसए भी सपोर्ट करता रहा है। यहां तक के पिछले दिनों ये तकरीबन जो 2-3 हफ्ते से गजा के मुसलमानों पर, वहां के सिटीजन्स पर जिस तरीके से बमबारियां हो रही हैं, जिस तरीके से उन पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, जिनमें छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे जिनके पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं, उन्हें बोलना नहीं आता, उनके जिस्म के छितड़े उड़ जा रहे हैं, तो उसमें इजराइल को किसी भी तरीके से अमेरिका सपोर्ट ना करे। हम इस चीज को कंडम करते हैं कि इजराइल के यूएसए के प्रेसिडेंट ने इजराइल को विजिट किया और इजराइल को सपोर्ट करने का ऐलान किया। लिहाजा हम तमाम सिटीजन्स ऑफ इंडिया का यूएसए से ये अपील है कि वो जल्द अज जल्द इस वॉर से बाहर निकले। अगर ये लोग, और एक बात और खास तौर पे, कि अगर ये लोग इस लेटर के बाद, और जिस तरह से हिंदुस्तानी आवाम की तरफ से ये आवाज गई है, इसमें किसी शख्स का नाम नहीं था, अगरचे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन नाम सिटीजन ऑफ इंडिया का था, यानी हर एक के दिल की आवाज थी, हर एक के दिल की धड़कन थी। और यहाँ जितने लोग आए और जो लोग बेचारे किसी मजबूरी की वजह से चले गए, हर एक की नुमाइंदगी हुई है, उन सब के तरफ से ये लेटर दिया गया है, और ये कहा गया है कि अगर इसको आपने जल्द अज जल्द नहीं रोका तो फिर लाखों की तादाद में पूरा बंगाल कलकत्ते में जमा होगा, इंशाअल्लाह लाखों की तादाद में जमा होगा। हम इंसानियत का खून बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम बच्चों का खून बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम मासूम औरतों का खून बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम स्कूलों के ऊपर बॉम्बिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम मासूम आवाम का मर्डर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ये फौरन इन लोगों ने नहीं रोका, और यूएसए इसमें इन्वॉल्व होकर जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, हम सबों को पता है, इसको सीज फायर नहीं किया तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है यूसीयू जब बुलाएगा लाखों की तादाद में पूरा बंगाल जमा होगा, पे बार बार जमा होंगे, उलमा की क़ियादत पे बार बार जमा होंगे, और इससे बेहतरीन पूरी और अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह प्रोटेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। कबल इसके कि मैं जनाब मौलाना मुख्तार साहब से दरख्वास्त करूं, बस एक उमर उवैस दुआ से पहले सलाम साहब को दे दीजिए, मौलाना नीचे आने में वक्त लगेगा, दुआ कराएं ताकि नमाज हम लोग जमात के साथ पढ़ेंगे भाई, अभी नमाज का वक्त आखिरी मर्तबा फ्री 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 फ्रॉम द रिवर टू द सी, फ्रॉम द रिवर टू द सी, बिर्रूह बिद्दम नफदीक या अक्सा, बिर्रूह बिद्दम नफदीक या अक्सा, अक्सा के लिए, 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 फ्री फ्री। अब चूंकि बाज़ाब्ता तरीके से अरेंज करके वापस देना है या फिर लेके जाना, रास्ता कोई गंदा नहीं करेगा। बिल्कुल अच्छा, ये लेग गार्ड वगैरह वो मैं बोल रहा हूँ, चूंकि जिस तरतीब के साथ हम लोग यहाँ से आए थे, पुरान तरीके से नमाज बाजमात इंशाअल्लाह हर लोग अदा